Now we are going to start about cabinet form of the government. Cabinet form of government in a parliamentary democracy. In a parliamentary democracy. Okay. So parliamentary democracy, cabinet is a highest decision making body. So it is a highest decision making body consisting of prime minister plus अदर मिनिस्टर्स. ठीक है, यूजुअली प्रेसिडेंट मोनार्च भी बोलते हैं इसको. तो यहाँ पर क्या है, कैबिनेट मिनिस्ट्री आर टिपिकली मेंबर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी कोalition गवर्नमेंट एंड तो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबल होती है. कैबिनेट मिनिस्टर आर द टिपिकली मेंबर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी कोalition गवर्नमेंट. कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क. कैबिनेट मिनिस्टर typically meets regularly to discuss the decision important issue facing by the country. Cabinet responsible for parliament and its members accountable to the parliament in action. The concept of cabinet in parliamentary democracy is important and represent the executive branch of the government. We can say it is a executive branch of the government responsible implementing laws and policies and smooth functioning. सबसे पहले वर्ड कैबिनेट दैट वाज आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 19 देख लेना कब आया था. सो दैट वाज 44th अमेंडमेंट 1978. ठीक है, एंड इट वाज नॉट प्रेजेंट इन ओरिजिनल टेक्स्ट बट ओनली मेंशन कैबिनेट द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक एंड under this. So cabinet role of political administrative system is the parliamentary government convention developed in Britain. ठीक है, तो रोल क्या होता है, टू सर्व द प्राइमरी फंक्शन, फॉर्मुलेट करना पॉलिसी को, अल्टीमेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कोऑर्डिनेट करना, एडवाइस करना किसको, प्रेसिडेंट को, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, लेजिस्लेटिव फाइनेंशियल मैटर, हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स करना सीनियर पोस्ट का, रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑल फॉरेन पॉलिसीज़. तो जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उसको भी देखती है. ठीक है, अगला है किचन कैबिनेट. सो कैबिनेट इज़ ए स्मॉल ग्रुप मेड अप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर. सेवरल की मिनिस्टर इज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी. सो हाउएवर एन इवन स्मॉलर ग्रुप नोन एज ए इनर कैबिनेट. इनर कैबिनेट को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज ए किचन कैबिनेट. Hold significant power. The informal group, it is a informal group comprises of PM plus few colleagues होते हैं, few colleagues होंगे PM के. ठीक है, so with the whom to discuss important issues of crucial decision. जितने भी crucial decisions होते हैं, decisions which is taken by him. So it may also include the consider such as a friend and family member. तो यहाँ पे कुछ friends होते हैं and some family members होंगे, family members, okay, of the PM. So has a close group advisor to the past. What is the main principle of cabinet मतलब form of government? It is a collective responsible. So principle of collective responsibility is a cornerstone of the form of government. This principle hold all the member of cabinet being member of council of minister are jointly responsible to the Lok Sabha. So they are jointly responsible to Lok Sabha, meaning they must work as a team and sing and swim together for responsibility. And Lok Sabha passes a motion of no confidence. अगर कोई मोशन है no confidence का अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल ऑफ द मिनिस्टर जो होंगे वो रिज़ाइन करेंगे. सारे के सारे क्या करते हैं, रिज़ाइन करते हैं. Additionally, the principle of collective responsibility is mean all cabinet minister as well as the other minister are बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ कैबिनेट इवन इफ दे डिसएग्रीड विद ड्यूरिंग द कैबिनेट. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. इन एडिशन प्रिंसिपल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 77 है, इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट कैबिनेट मिनिस्टर ऑल्सो सर्व प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. तो ये होते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से सर्व करते हैं. ठीक है,
and can be removed by the president time regardless of whether the council of ministry have confidence of the Lok Sabha. The such as removal would only occur the advice of the prime minister. PM जब advice करेंगे तब उनको हटाएंगे. PM has a different opinion, unhappy with the cabinet minister, so he can resignation to the cabinet minister. ठीक है, advice of the president. Now central role क्या होता है PM का? As a prime minister, head of the cabinet, leader of the executive branch of the government, पार्लियामेंट्री सिस्टम में द प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क द प्रेसिडेंट टू रीशफल द पोर्टफोलियो. तो जितने भी पोर्टफोलियोज होते हैं इसको क्या करता है वो रीशफल करेगा. प्राइम मिनिस्टर कैन इम्पोज डिसीजन इफ़ देयर इज़ डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, तो ये इम्पोज भी कर सकता है. प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज ए लिंच पिन, ही इज़ वर्क इज़ ए लिंच पिन बिटवीन द प्रेसिडेंट कैबिनेट एंड कम्युनिकेट करता है डिसीजंस को. पॉलिटिकल होमोजेनिटी मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम रेफर टू द cabinet member are performing, so political homogeneity allow the efficient decision making. There is a efficient decision making by the government who is the accountable to the policies, and conversely it is a coalition government where no single party. So what is the cabinet committees? Cabinet committees को हम कहते हैं extra constitutional होती हैं. ये क्या होती है? Extra constitutional in nature. ठीक है, बट इट इज़ ए मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन. कैबिनेट कमेटी आर द टू टाइप, एक तो होती है स्टैंडिंग कमेटी और एक होती है एडोक कमेटी. सो दीज आर द कमिटीज़ आर परमानेंट नेचर but later is temporary nature. Ad hoc committee are the established from the time to deal with a special problem. Cabinet committee set up the prime minister according to the exigency requirement of situations of nomenclature. They are not only sort out the issue or formulate the proposals but also decisions however. So they are the organization device to reduce the enormous work जो होता है कैबिनेट को. इन डेप्थ एग्जामिनेशन करेंगी पॉलिसीज़ की. ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटीज़ हैं. पहला है इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री अफेयर, एम्प्लॉयमेंट, स्किल एंड अकोमोडेशन. तो ये मैं आपको 7 कमिटीज़ हैं यहाँ पर. 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कमिटीज़ हैं यहाँ पर. ठीक है, कंपोजिशन क्या है? सो द कंपोजिशन ऑफ कैबिनेट कमिटीज़ इन इंडिया इज रेंज फ्रॉम द 8 मेंबर which typically consist of the cabinet minister. However, non-cabinet minister may also be appointed as the additional senior ministers not in charge of this, but prime minister usually chair the committee. But in some cabinet ministers such as home minister जो होता है वो भी role play करता है. So at present all the committee except the cabinet committee of accommodation on the parliamentary affair headed by prime minister. एक तो है accommodation वाली एंड प्लस सेकंड है पार्लियामेंट्री अफेयर वाली. ठीक है, तो ये दोनों जो हैं पीएम इसको हेड करते हैं. पीएम हेड करेंगे किसको? एक तो पार्लियामेंट्री अफेयर को, एक अकोमोडेशन को. मोर एवर द कैबिनेट कमेटी अकोमोडेशन हेडेड बाय द होम मिनिस्टर एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर. वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो अकोमोडेशन वाली तो कौन करता है? होम मिनिस्टर एंड कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो है वो डिफेंस मिनिस्टर. तो इन द ऑल द कमेटी एक्सेप्ट द कैबिनेट कमेटी अकोमोडेशन. सॉरी, मैंने आपको रॉन्ग बताया. तो देखो, अकोमोडेशन वाली और पार्लियामेंट्री अफेयर को छोड़ के बाकी सबको कौन हेड कर रहे हैं? पीएम. तो अकोमोडेशन वाली जो कमेटी है उसको हेड कौन कर रहा है? होम मिनिस्टर. होम मिनिस्टर किसको हेड कर रहा है? अकोमोडेशन वाली कमेटी को. और बाकी जो सेकंड है पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी ऑफ डिफेंस, तो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी को हेड कौन कर रहा है? वो कर रहा है डिफेंस मिनिस्टर. तो एक को तो होम मिनिस्टर करेगा, एक को डिफेंस मिनिस्टर करेगा. सो दैट इज़ अबाउट द पार्लियामेंट्री कमेटी.